we are going to start of exercise 16.3 of class 10th. In previous videos we have discussed about the formulas and some questions basis on area and volume of cube, cuboid and cylinder. So here the new topic is cone. You have seen some birthday cap, joker cap and in the ice cream cone, cone है, that is the shape of cone. That is the shape cone. Cone shape कैसी होती है? That is the this shape. मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ. आइसक्रीम कोन कैसा होता है आपने देखा है. You have seen आइसक्रीम कोन like in the this way. This way. This shape is known as ice cream cone या फिर we can say only cone. So here are this is the center of the cone. Center of the cone means center of the base of the circle of the cone. And this distance is known as radius represented by small. And this is the height of cone. Height of cone is represented by small h. And this distance is called, this inclined distance is called as slant height. And slant height is represented by L. So in which if we want to find area volume of cone, so how we will define? Curved surface area of cone. What is the curved surface area of cone? Let's see. This is a cone. तो cone के ऊपर जहां जहां मेरा फिंगर जाएगा, जहां जहां मैं टच कर रहा हूं, that is known as curved surface area. Like this complete portion, outer side, this complete portion, ये जो portion है, this is known as curved surface area of cone. So curved surface area of cone is represented by pi r l, where the value of pi is 22/7. If it is given 3.14, then we will put 3.14. R stands for radius of cone and L is known as slant height. So curved surface area of cone is given by pi r l. If we want to find total surface area means curved surface area, this complete portion plus along with this portion, this is known as, आप आइसक्रीम सॉफ्टी कौन देखोगे, दैट इज उसका जो बेस है किसकी शेप में होता है? सर्किल की शेप में होता है. ये सुनो, जो उसका बेस होगा किसकी शेप में होगा? सर्किल की शेप में होगा. तो सर्किल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. तो वी कैन से एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल. इफ वी वांट टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, देन वी कैन ऐड CSA प्लस एरिया ऑफ बेस, और एरिया ऑफ बेस इज नोन एज सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर. CSA कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आपके पास? पाई आर एल. एंड एरिया ऑफ बेस इज सर्किल की फॉर्म में पाई आर स्क्वायर. कॉमन क्या है दोनों में? पाई आर. If we take pi r common, then remaining here L and plus R. That is given by known as total surface area of cone. Total surface area means के complete portion. Outer side का जो complete portion है, that is known by total surface area pi r bracket L plus R. And after that volume. Volume of cone is given by 1/3 pi r square h, where r is the radius and h is the height of cone, not slant height, only height. H is known as height. So there are the three formulas. Area of base of cone, circle की shape है pi r square. Circumference of base of cone, हाँ जी define करें. Base of cone is in the shape of circle. Base of cone is in the shape of circle. So circumference of circle is circumference of base of cone, and the circumference of circle is 2 pi r. So if 5 formulas है on the basis of coin, we will do questions. Exercise 16.3 first question. Exercise 16.3 के ये अगर आपको फॉर्मूले लर्न है, then you will can do easily question. Question number first of exercise 16.3, in which given is height of cone. Height of cone is equals to 28 centimeter. How we will solve this question? Firstly, write given all data. Height of cone is equals to 28 centimeter and radius of base
radius of base is equals to 21 centimeter. It means क्या, radius of base that is the radius of cone that is given 21. height क्या given है 28, radius क्या given है 20, height given है 28 and radius क्या given है 21. तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं स्मॉल h स्मॉल r. स्मॉल h क्या गिवन है, हाइट क्या गिवन है 28, r क्या गिवन है 21. एक फॉर्मूला है स्लैंट हाइट और रेडियस एंड हाइट के बीच में क्या रिलेशन है, l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. ये भी रिलेशन है. ये राइट सर्कुलर कोन क्या है कि रेडियस और हाइट जो है वो परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री है. दैट वी कैन से राइट एंगल. राइट एंगल है तो राइट सर्कुलर कोन भी इसे कहते हैं. L square is equal to r square plus h square. How we will find h r l? Pythagoras theorem लगा के we can find L square is equal to r square plus h square. r square plus h square is equal to L square. Find क्या करना है, curved surface area. Curved surface area of cone is given by pi r l. Here pi we know 22/7, otherwise 3.14. Radius given at 21, but here the unknown value is L. How we will find L? By this formula, because R and H are given. So how we firstly we find L. L square is equal to R square plus H square. R square 21 square plus H square 28 square. 21 square is, we will know that 441 and 28 square is 784 plus है after plus 4 plus 1 5, 8 plus 4 12, 7 plus 4 11, 11 1 carry 12. So here we get L square is equals to 1225 1225. After taking rule we get L is equals to 35 centimeter because height and radius are in the same unit centimeter. So here L is equals to in the centimeter. L find कर लिया, we can easily find CSA. Let's see. After calculation, CSA is equals to pi r l. Value of pi is 22/7, and here the radius is 21, and the L find किया अभी 35. 7 की टेबल से कैंसिल कर लिया 3 पे. क्या कैलकुलेशन रहेगी 22 multiply 3 multiply 35. After multiplying we will get answer. बहुत इजी क्वेश्चन है. कर्व सरफेस एरिया, इट मींस क्या फाइंड करें, एरिया फाइंड करें. एरिया फाइंड करें मींस आंसर के बाद जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज द ऑल वैल्यू वी हैव पुट इन दिस फॉर्मूला आर इन द सेंटीमीटर यूनिट. सो एरिया की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर. बहुत आसान है. टोटल सरफेस एरिया भी वी कैन फाइंड इजीली एंड वॉल्यूम इज आल्सो बिकॉज आर एच गिवन है. द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. जो क्वेश्चन है अभी जो सॉल्व किया फर्स्ट क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके यू कैन नोट डाउन इन योर रफ नोटबुक एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन डिस्कस. सेकंड क्वेश्चन होगा. सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज वॉल्यूम इज फर्स्टली गिवन डाटा. वॉल्यूम इज इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर क्यूब आपको गिवन है. गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है. देन हाइट गिवन है. हाइट आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर. ठीक है. 16 चैप्टर या 15 चैप्टर एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन आपको करने हैं. देन पैटर्न क्या है, जो गिवन है या जो फाइंड करना है, दोनों का फॉर्मूला आप राइट कर लो. यू कैन राइट फॉर्मूलाज ऑफ बोथ what have given and what we want to find. So here we want to find L. L find करना है. L का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, बट V का फॉर्मूला वॉल्यूम का फॉर्मूला है. वॉल्यूम ऑफ कॉन इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h. यस और नो, फॉर्मूला लाना होना चाहिए. वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम क्या है 1232. तो बोथ आर इक्वल, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे. 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 1232.
दोनों को इक्वल पुट कर दिया। अब देखो ये फॉर्मूला पुट करके आप क्या फाइंड कर सकते हो, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर गिवन, एच गिवन है। तो इस फॉर्मूले में आपको 1/3 पता है, पाई गिवन है, एच गिवन है 24, देन वी कैन फाइंड इजीली द वैल्यू ऑफ आर बाय सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। 1/3 22/7, आर गिवन नहीं है, आर तो फाइंड करना है यहाँ से, एच क्या गिवन है 24 इज इक्वल टू 1 2 3 2। So after simplify this equation, r square is equals to 1 2 3 2 multiply, डिवाइड वाला 3 कहाँ शिफ्ट होगा, 7 भी मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 7 और 22 24 मल्टीप्लाई में r स्क्वायर के वो कहाँ शिफ्ट होंगे, डिवाइड, 22 मल्टीप्लाई 24। So after simplify this equation we will get value of r, and after finding the value of r we can easily find value of l, because r की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी, r स्क्वायर की भी कर सकते हैं, r की वैल्यू फाइंड कर ली प्लस h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, h की वैल्यू फाइंड करके इजीली वी कैन, h की वैल्यू आपको गिवन है, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर पुट करेंगे, l स्क्वायर आ जाएगा, रूट करेंगे, l की वैल्यू मिलेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई डाउट है आप डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम लोग 8th नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 8th नंबर जो क्वेश्चन है आपका सेम क्वेश्चन है, बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, फॉर्मूले में अभी आप लिखवा दिए 5 to 6 फॉर्मूले ऑन द बेसिस ऑफ कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, the base of two cones are of same diameter। two cones हैं, डायमीटर क्या है, इक्वल है, डायमीटर क्या है, इक्वल है। सो इस कोन के लिए लेट किया हमने, डायमीटर d1, सो रेडियस r1, हाइट h1, स्लैंट हाइट h1। फर्स्ट कोन के लिए d1 r1 h1 l1। फॉर द सेकंड कोन डायमीटर d2, रेडियस r2, हाइट h2, स्लैंट हाइट l। फर्स्ट कोन के लिए 1 यूज कर लिया, सेकंड कोन के लिए 2 यूज कर लिया। हाँ जी, गिवन क्या है, गिवन है डायमीटर ऑफ बोथ कोन, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ बोथ कोन आर इक्वल, डायमीटर इक्वल है। वी नो दैट हाफ ऑफ डायमीटर इज नोन एज रेडियस, इट मींस रेडियस आर आल्सो सेम, रेडियस भी क्या होगी, सेम होगी। तो आपका क्वेश्चन क्या है, एंड आपको स्लैंट हाइट का रेशियो गिवन है, स्लैंट हाइट का रेशियो L1/L2, we can write ratio in the fraction form, yes or no? L1/L2 is given by 5/4, L1/L2 is given by 5/4। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको स्मॉलर कोन का गिवन है, स्मॉलर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या गिवन है, 400। ये क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा सा चेंज है, आपको जो है क्वेश्चन में डाटा थोड़ा सा चेंज है, गलत क्वेश्चन है, बट अगर जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करें, कर्व्ड सरफेस एरिया, बुक से आंसर मैच नहीं होगा आपका, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या गिवन है, 400 गिवन है, स्मॉलर का 400 गिवन है, वी कैन फाइंड। हाँ जी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2, कर्व्ड सरफेस एरिया 1 का क्या होगा, पाई r1 l, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 क्या होगा, पाई r2 l2। L1/L2 क्या गिवन आपको, 5/4, L1/L2 क्या गिवन है, 5/4। स्मॉलर वन हमने यहाँ पे ये नहीं बताया कि स्मॉलर कौन सा है, तो यहाँ पे ये आएगा कि L2 स्मॉलर है आपका, क्योंकि L1/L2 का जो रेशियो वो 5/4 है, तो या तो यहाँ से आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि L1 जो है वो बिगर के लिए और L2 जो है वो स्मॉलर के लिए। तो L2 के लिए हम लोग ये स्मॉलर लिख के, तो CS से क्या होगा इसका 4, स्मॉलर कौन सा होगा, L2 वाला, बिकॉज L1/L2 5/4 है, 5/4 मींस 1/25, 1/25 मींस ग्रेटर देन
1। इट मींस क्या है, जो ऊपर वाली डिजिट है वो बड़ी है, बड़ी डिजिट है, इट मींस L1 की जो वैल्यू है वो बड़ी है, L1 की वैल्यू बड़ी है, इट मींस इसका जो एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया वो बड़ा होगा। तो स्मॉलर कौन सा हुआ, सेकंड वाला। तो सेकंड वाले के लिए आपको 400 वैल्यू की बना। CSA ऑफ 1 तो फाइंड करना है, बिगर के लिए तो हाँ जी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके लिए एक बार x लेट कर लेते हैं अपॉन में CSA ऑफ 2 क्या गिवन है 400, स्मॉलर किसका गिवन है 400 गिवन है, इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल, R1 R2 इक्वल है कैंसिल, N1 आपको N2 क्या गिवन है 5/4। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल गेट x इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कॉन इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कौन है, कौन के लिए आपको जो डाटा गिवन है वो डाटा लिख लेंगे। नेक्स्ट जो भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है वो राइट कर लेंगे, जो फॉर्मूला राइट करना है वो फॉर्मूला राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, CSA गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9, CSA इज इक्वल टू 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA क्या गिवन है 792, बार बार नहीं लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे CSA। CSA गिवन है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द स्लैंट हाइट एंड रेडियस का रेशियो क्या गिवन है, L/R इज गिवन बाय 7/4। L/R रेशियो भी क्या राइट फ्रैक्शन फॉर्म, सो L/R इज इक्वल टू 7/4। तो यहां से अब आपके पास आगे देखते हैं। देन फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करनी है। अब रेडियस का वैसे डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला है नहीं, CSA का फॉर्मूला है। मैंने क्या कहा था, जो गिवन है ये जो फाइंड करना है, दोनों के फॉर्मूले राइट कर लो, उसी बेस पे आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। CSA का फॉर्मूला क्या है, पाई r है। CSA ऑफ कौन, पाई r l इक्वल्स टू 792। CSA ऑफ कौन क्या होगा, पाई r l अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 792। तो दोनों को इक्वल पुट कर दिया। अब देखो यहाँ से r की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बट ये l एक्स्ट्रा में है, तो l को भी r की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपको कंडीशन गिवन है। यस और नो, लेट्स सी। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल गेट 4 मल्टीप्लाई l 4 है, r मल्टीप्लाई 7 है, एंड आफ्टर दैट वी विल गेट l इज इक्वल टू 7/4। सो इस कंडीशन से l की वैल्यू r की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो राइट करेंगे यहाँ से, पाई की वैल्यू 22/7, r का r, रेडियस तो फाइंड करनी है, l को भी r की फॉर्म में लिख सकते हैं 7r/4 इज इक्वल टू 792। 7 से 7 कैंसिल, r मल्टीप्लाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 792। डिवाइड वाला 4 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर, डिवाइड वाली डिजिट कहाँ शिफ्ट होती है, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में क्या है 22, कहाँ शिफ्ट होगा, डिवाइड के अंदर। तो यहाँ से जो आपके पास आफ्टर कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, 22 की टेबल से 3 पे 6 पे 36 4 जा 144। आफ्टर सॉल्विंग दिस expression we get r square is equal to 144. So after taking square root we will know that 144 is the square of 12. So after square root we will get r is equal to 12. Radius find करनी थी, easily find कर लिया। But how we will do this question? CSA given था, CSA का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, दोनों को इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ से L जो है वो हमें नहीं चाहिए, तो L को R की फॉर्म में राइट कर लिया, उसके लिए भी कंडीशन गिवन है। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये आप जैसे प्रैक्टिस करोगे वो आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आप वीडियो पॉज करके रफ नोट में नोट डाउन कर लो, एंड उसके बाद वापस से सॉल्व करो, कोई डाउट आए तो आप डिस्कस करो। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रहा हूं 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में जो है सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कॉनिकल टेंट एंड हाइट गिवन है। सर्कमफेरेंस देखो कैसे सोल्व करेंगे। सर्कमफेरेंस क्या गिवन है 44, हाइट क्या गिवन है, हाइट आपको गिवन है 9। बुक में डिजिट रॉन्ग है, सही डिजिट क्या है, सर्कमफेरेंस क्या है 44, हाइट क्या है 9। अब सर्कमफेरेंस ऑफ बेस आपको बताया था कि जो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस होगा वो क्या होगा, कोन का जो बेस है किसकी फॉर्म है, सर्कल की फॉर्म है।
सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या है 2 पाई r इज इक्वल टू 40। फ्रॉम हियर वी गेट इजीली वैल्यू ऑफ r। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी क्या था, r की वैल्यू डायरेक्ट नहीं गिवन, रेडियस ऑफ कोन डायरेक्टली गिवन है, बट वी कैन फाइंड रेडियस फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। उसके लिए कंडीशन गिवन आपको सर्कमफेरेंस ऑफ बेस is given 44. So after 2 pi r is equals to 44, from here we get r is equals to 7 upon 2. Let's solve 2 pi r is equals to 44. So from here we get r is equals to 7. Radius क्या है 7 है, रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, फाइंड क्या करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 1/3 pi r square h। 1/3 पता है, पाई 22/7, रेडियस अब ये भी फाइंड किया 7, हाइट ऑफ कोन इज गिवन दैट इज 9 मीटर। सो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला वी विल गेट इजीली फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आए डाउट आए आप डिस्कस कर लेना मेरे से। देन आपका क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन भी आपका थोड़ा ट्रिकी है और बोर्ड के पर्पज से इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है 16.3 का क्वेश्चन नंबर 40। द रेडियस ऑफ ए सेक्टर इज 12 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 120। देखिए सेक्टर, ये सब सेक्टर में आपको जो रेडियस है वो क्या गिवन है, ये सेक्टर की रेडियस हो जाएगी। ये सुनो, सेक्टर की रेडियस आपको गिवन है 12। अब आपने इसको फोल्ड करके क्या किया, ये जो आउटर साइड है इसको आपने फोल्ड करके क्या कर दिया, ये देखो ये भी 12 है, देन दिस इज आल्सो 12। इस साइड को आपने फोल्ड करके क्या मेड कर दिया, कोन मेड कर दिया। यस और नो, देन वी कैन से इजीली the radius of cone, radius of sector is equals to slant height of cone. We can write radius of sector is equals to slant height of cone. वापिस से देख लो, ये रेडियस है, means this distance is radius and this is given 12. After folding these two sides, we will get this cone. ये आपका कौन बन गया, आप देख सकते हैं कौन बन गया ये, and we will know that is the slant height, and slant height is equal होगी इसके किसके, radius of sector। यहाँ से we get L is equals to 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, L किसके इक्वल होगा 12 सेंटीमीटर। and after here the angle is 120 degree, angle is 120 degree and you can see दो एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट वन, द लेंथ ऑफ आर्क आफ्टर फोल्डिंग, लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क, यस और नो। आफ्टर फोल्डिंग दीज टू sides we get the length of arc is the circumference of cone, circumference of base of cone। let's see, the length of arc is the circumference of base of cone। length of arc is equals to circumference of base of cone। कौन के लिए L फाइंड कर लिया, यस सर। इस एक्सप्रेशन से आपके पास रेडियस है, लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क पाई आर थीटा अपॉन में 180। 15 चैप्टर में आपने स्टडी किया, लेंथ ऑफ आर्क इज पाई आर थीटा अपॉन में 180। सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन, सर्कमफेरेंस बेस ऑफ कोन इज गिवन बाय 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस बेस किसकी फॉर्म में है, सर्किल की फॉर्म में, and the circumference of circle is 2 pi r। so आपके पास ये जो रेडियस है ये है सेक्टर के लिए, s लगाते हैं, और ये जो रेडियस है ये किसके लिए, कोन के लिए। ऐसा नहीं कि आप r से r कैंसिल कर दें, तो फाइन क्या करोगे, हाँ जी पाई 22/7, पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हो, ये कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी।
ये जो रेडियस है ये सेक्टर के लिए, लेंथ ऑफ आर्क किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, सेक्टर के लिए फाइंड कर रहे हैं, सर्किल के लिए फाइंड कर रहे हैं। और ये जो किसके लिए है, ये कोन के लिए जो रेडियस है, जो न्यू रेडियस बनेगा आपकी। हाँ जी, पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हैं। रेडियस ऑफ सेक्टर इज 12 बिकॉज वो तो एल के इक्वल है 12। थीटा, थीटा आपको गिवन है 120 डिग्री। थीटा क्या गिवन है 120 डिग्री अपॉन में 180 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ कोन। सो 0 से 0 कैंसिल एंड 6 की टेबल से 2 पे, 6 की टेबल से 3 पे, 2 से 2 कैंसिल, 3 की टेबल से 4 पे। So from here we get radius of cone is equals to 4 centimeter. So here we get the radius of cone is equals to 4 centimeter. वापिस से कैलकुलेशन देख लेना। The length of arc is equals to circumference of base of cone. So from here we get the radius of cone is equals to 4 centimeter. L we will know. So from by this formula L square is equals to R square plus H square. L is given, R we will find, then we can easily find the value of H. Let's see. 12 square 144. R 4 square is 16 plus H square. So from here we can find the value of H. The height of cone we can easily find by simplifying this expression. 16 shift किया 128 is equals to h square. After taking root both sides, here we get the height of the cone is 8 root 2. By prime factorization method, we will get height of cone is 8 root 2, and we want to find volume of the cone. Radius we will find 4 centimeter. Height we have find 8 root 2 centimeter, and the volume of cone is 1 by 3 pi r square h. 1 by 3 pi r 4 square 16 h 8 root 2. After simplify we will find easily the value of volume of cone. Here the value of root 2 we will know that 1.414. Value of root 3 is 1.732. So we can easily find root 2 की वैल्यू है 1.41 पुट करके कैलकुलेशन करके वॉल्यूम का आंसर आएगा। यूनिट का मेंशन करेंगे सेंटीमीटर। तो 16.3 है जो आपकी कंप्लीट है। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन डिस्कस विद मी। थैंक यू सो मच।